تو دیکھو آج میرا لیکچر دینے کا پہلا مقصد ہے اپنی زمین کو بچانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنی زمین کو بچانا. آپ جتنے مرضی مہنگے بیج لو, دیکھو مہنگے بیج لو گے کیا کرو گے؟ لفافے میں تھوڑا رکھنا ہے, ڈبے میں تھوڑا رکھنا ہے, وہ کیا کرنا ہے؟ زمین میں ڈالنا ہے. اگر ہماری زمین ہی کمزور ہوگی, زمین ہی بیکار ہوگی, زمین گہرا پاشی ہوگی, تو ہم کیسے کریں گے؟ ہے نا. تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے بیج اچھا لے لیا ہے, اگر زمین کی صحت اچھی نہیں ہوگی, اگر ہماری ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی, تو زمین میں بیج بھی سڑ جائے گا. تو اس لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے, یہ پیچھے جو کھڑے ہیں آف لائن سکیمز ڈپارٹمنٹس مز ایڈورٹائزمنٹ خاص کر انیشل ایئرس مز گژھان, مارچ اپریلس مز ایڈورٹائزمنٹ گژھان تر مز موسٹ امپارٹنٹ سکیم انٹیگریٹڈ شیپ ڈیولپمنٹ سکیم. ات مز دۄیہِ طریقہٕ سکیم اس نش, اکھ سبسڈی بیس سکیم, بیاکھ ریٹریول بیس سکیم. سبسڈی بیس سکیمس مز فارمرس بینیفیشریس پانے پیوان لایف سٹاک ان, پتہ تر سبسڈی دِوان تھرو DBT موڈ 50% سبسڈی. یس سکیم ISDS سکیم, ات مز 20 تیرن سکیم, 20 تیرن یہ سکیم, تو یتھ کاسٹ بنان 2 لچھ رۄپیہِ, ات دمو أسۍ سبسڈی 1 lakh رۄپیہِ 50%. تۄہہِ گژھِ گۄڈنِچ خبر آسٕنۍ کہِ آز چھُ فارمٲرٕس ڈے, ییٚمیُک زن تھیٖمٕے چھُ کہِ أسۍ کرہوکھ ایمپاور یِم زن اَسہِ فُڈ پرووایڈر چھِ, یِم زن فارمر چھِ. تمی سۭتۍ گژھِ سون مُلک ترقی یافتہٕ تہٕ پراسپرس. یہِ ایمپاور کرنہٕ خٲطرٕ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ الایڈ یُس تہِ سیکٹر چھُ, الایڈ ایگریکلچر سیکٹر, تتھ منٛز چھِ أسۍ ہارٹیکلچر تہِ. تو اَسہِ تہِ چھِ کینٛہہ سکیٖم ییٚمہِ سۭتۍ زن أسۍ پنٕنۍ فارمر ایمپاور کرہوکھ. چوٗنٛکہِ تۄہہِ ٲسوٕ وُنیُک تام بوزان یِم زن سٲنۍ ٲسۍ چیف ہسبنڈری پٮ۪ٹھ ڈاکٹر صٲب ونان ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام. اَسہِ چھِ اتھ منٛز ہارٹیکلچرس پنٕنۍ 4 پروجیکٹ, مگر امہِ برونٛٹھ کہِ بہٕ ونہٕ یِم پروجیکٹ, بہٕ ونہٕ کرونالجی منٛز کہِ یۄس تہِ سکیٖم تۄہہِ اسہِ نِش آسوٕ نِنۍ, تمہِ خٲطرٕ چھُ گۄڈنیتھ کہِ تُہۍ گٔژھِو اسہِ نِش رجسٹر. چوٗنٛکہِ تۄہہِ دِمہو بہٕ بریٖف آیڈیا پننہِ ہارٹیکلچر زون بجبہارو. اَسہِ چھِ اراؤنڈ 45 ولیجز کورنگ اراؤنڈ 200 کنال آف بوتھ فریش اینڈ ڈرائی ایریا, یتھ منٛز زن سٲنۍ ژوٗنٛٹھۍ تہِ چھِ, ٲر چھِ, باقٕے میوٕ باغات چھِ. ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹس مز پروگرام چاہے سیڈ 29 پروجیکٹ تم, ات مز 7 ڈپارٹمنٹ, ایگریکلچر تہ, ہارٹیکلچر تہ, شیپ تہ, اینیمل ہسبنڈری تہ. اتہ تم چیز یمن پہ تھرسٹ دن آمت 3 چیزن پہ. نمبر 1 یہ کہ ٹو انکریز دی کراپ پروڈکشن, سا بڑھاو پن فصل. یہ فصل بڑھاونس کم کم چیز لگن ضرورت, تم ات مز موجود. بیاکھ یہ کہ زمیندار سن انکم کت پہ بڑھ, تیل بڑھ زمینس کن انٹرسٹ انسانس یل سہ پن اتہ انکم جنریٹ زیادہ زیادہ کرے, یل سہ پن گھر بنوت ہیکہ. نت اگر ات چیز پتہ روٗدۍ, سونت کل ترو آب, دانہ رو, ؤریس بیٚہمو گرِ, ہردٕ رودو, ہردٕ آو تِلگۄگُل برونٛٹھ چھٔچِس, بیوٗٹھ گرِ, یہ گوٚو ٹایم پاس کرُن. یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ انقلاب یی نہٕ کینٛہہ. اتھ چھُ یِتھ پٲٹھۍ وٕچھو تُہۍ وٕنۍ ییٚتہِ چھِ مُشکہٕ بٔچی, یہ مُشکہٕ بٔچی ٲس صرف 6,000 یا 7,000 گژھان اکھ کوینٹل, مگر آز چھِ گژھان 15,000 کوینٹل. GI ٹیگ ییٚلہِ اتھ میلیو, ویلیو ایڈیشن چھُ کرُن. رُہُن آسوٕ تۄہہِ ییٚتہِ وٕچھمُت, پٔتمہِ ؤری گٔے ییٚمی بستی منٛز درٛاے کۄلگوم یتھ وانی گُنٛڈ سایڈٕ تہِ, ییٚمی بستی منٛز گٔے کینٛہہ رُہُن یتھ منڈی منٛز ٲسۍ کٕنان. سُہ رُہُن گوٚو کینٛژو نیوٗ سُہ US امیریکہ. امیریکہس منٛز دوٚپُکھ کہِ یہِ ہسا چھُ دُنیُک ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن رُہُن یُس اتھ مُشک چھُ آسان. اگر أسۍ سُہ رُہُن بناوو, تتھ ویلیو ایڈیشن کرو. ویلیو ایڈیشن گوٚو اگر أسۍ یہِ صاف کرو, میٚژِ ہن تُلو أسۍ تھوٚد, لفافس منٛز کرون پیک, ڈبس منٛز کٕنو اصل پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ نیبرِم تِم کھٔزٕر یِوان چھِ ڈبن منٛز. سُہ چھُ یلہٕ کھٔزٕر تہِ تی آسان, بنٛد کھٔزٕر تہِ تی آسان, مگر یلہٕ کھٔزٕر آسان 50 رۄپیہِ کِلوٗ, بنٛد کھٔزٕر آسان 400 رۄپیہِ کِلوٗ. یہ چھِ یِمے ویلیو ایڈیشن ییٚلہِ أسۍ کرو, تیٚلی بڑِ اَسہِ انکم تہِ پنٕنۍ, تیٚلی ہٮ۪کو أسۍ ریونیو تہِ بڑٲوِتھ. أسۍ سمجھاو ییٚمہِ ییٚتٮ۪ن اِکٹھے گژھنُک مقصد کیٛاہ چھُ.
इसलिए बह समझान कि सही तम ड्राइंग और बहुत कोशिश मन कि मजीद गोस तुम तकलीफ लगन कह अगर सारी शायद परेशानी तकलीफ मुझे सदा मशहूर एजाज साहब साइंस डिपार्टमेंट प्रोग्रामों की रसीने का विभिन्न भारतीय आप चूंकि सड़क से बड़ तंग बिजली से खस्ता हालत में और वही ये जन तीज बड़ बड़ स्कॉलर पढ़मित लिखमित लुक अतम पे नो रोमत कर दुख युत योत कह इलाकस अकि वक्त वना बतनंदी तूत इट वाज नोन एज द राइस बाउल ऑफ कश्मीर यूत फूड ग्रेन प्रोड्यूस ये पन्ने खतर तरान बाकी खतर सप्लाई गसान और उस वक्त ये लोग काफी अमीर थे हमारे इलाके से ज्यादा आसूदा हाल यहाँ के लोग थे मगर आज ये वुचान एजाज साहब पाने वनान सुबहानपोरा साइड गोज बह तक वुच मे जमीन फ्रॉड इन सग खतर आबी बास पत्म वरी पवनस लुको क्योंकि यहाँ पे मौजूद है क्योंकि ये जो आज का मेला जो हमने किसान मेला इनकाद किया है ताकि हम जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो सेरिकल्चर हो हार्टिकल्चर हो इन सब को हमने एक ही जगह बुलाया ताकि इस जो ये गाँवों हैं यहाँ के सारे ज़मींदार हर किसी स्कीम की जानियाबी हासिल कर पाए हैं। आपने देखा यहाँ पे हमने कुछ ऐसे स्टॉल्स भी लगाए थे ताकि ज़मींदार खुद देख पाए कि उनकी ज़रूरियात जो है वो किस हद तक इन स्कीमों से हासिल हो पा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि ऑनरेबल जो MLA है हमने एक बुक भी रिलीज़ की है यहाँ पे। उस बुक में मजमूआ है 29 प्रोजेक्ट्स का जिसमें एक ज़मींदार को हर किसी स्कीम के बारे में बताया जाता है कि उसको कौन सी स्कीम में कितने परसेंटेज की जो सब्सिडी है वो मिलेगी या कोई अगर कोई भी एग्री एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहेगा इस कैंप में वही जानकारी लोगों को दी जाती है। और इस कैंप की सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि हम ज़्यादा तादाद में जो फार्मर्स हैं उनसे मिल पाते हैं और अपनी बात जो है वो उन तक पहुंचा पाते हैं। क्या मैसेज ये है कि जो हमारे ज़मींदार भाई हैं हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो भी ज़रूरियात ज़मींदार की है वो उसमें अवेलेबल है। वो यहाँ अपने गाँवों के नज़दीकी किसान खिदमतगर CSC सेंटर्स या हमारे जोन पे जाए या HADP.jk.gov.in को एक्सेस करें। वहाँ से जो उनका जो सारा जो सिस्टम है वो पूरा खुलेगा और वहाँ से वो किसी भी स्कीम में अप्लाई कर पाएंगे और इस्तेफादा हासिल करेंगे। सर इससे हट के एक सवाल जिस तरह से रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी एक मुद्दा है गर्म छेड़ा हुआ है। तो अब हालात यहाँ तक आप पहुँचे हैं कि आपके अपने MP जो है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप कब तक सरकार को इस पर जो है एक जिस तरह से कुमार साहब ने कहा कि कमेटी बनाई गई है तश्कील दी गई है तो क्लैरिफिकेशन कब तक देनी चाहिए? देखिए मैंने एक ट्वीट में भी लिखा था लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा की जाती है। जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया इन सब चीज़ों का और उन्होंने अपने ट्रॉल्स बनाए हैं 5-5 लोग उनके फॉलोवर है और उसके बाद दे आर स्प्रेडिंग मैलिशियस प्रोपेगेंडा। इससे काम नहीं चलेगा। आपको देखना है प्रैग्मेटिकली देखना है। और मैंने उमर साहब के साथ इस पर डिटेल बात की है आज से 15-20 दिन पहले उनके घर पे मेरे सर शाहीन साहब भी थे और लारमी साहब भी थे। हमने इस इशू पे वेहमेंटली बात की और मुसीबत ये है कि जो डिमांड कर रहे हैं लोग फील्ड में वो सही डिमांड करें, गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिज़र्व कैटेगरी जो है वो बहुत कम है
लेकिन बदकिस्मती 70% की तरफ धकेला जा रहा है रिजर्वेशंस को, जिससे हमारा ओपन मेरिट बहुत बुरी तरह से सफ़र हो रहा है। तो उस वक्त हमारी कम्प्रहेंसिव बात हुई थी उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, तो उन्होंने भी उस वक्त हमारे साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए ही इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टू ऑल दीज थिंग्स। उसने कहा कि एक तो कोर्ट में चला गया ये मसला, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें डायरेक्ट से है, लेकिन वो सब होते हुए भी हम फाइट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान अनकरीब हमारी सब कमेटी भी जो भी होगी और उसके अलावा हम लोग भी जितना हो सकेगा हम इसको सेव करेंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से जो यहाँ लोग जो हमारी डिमांड है वही डिमांड के मुताबिक रिजर्वेशन यहाँ पे होगी। और मैं भी बहुत इस हक़ में हूँ कि जो आपका यहाँ का जो सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क है, जो सोसाइटी में ज़्यादातर यहाँ पे ओपन मेरिट के लोग ही है और उन्हीं की तादाद ज़्यादा है, 70% बल्कि 75% ओपन मेरिट होना चाहिए और रिजर्वेशन हमारी कम है। रिजर्वेशन उनके जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से होनी चाहिए। बाकी हिंदुस्तान के अंदर हमें पता है बहुत सारा पिछड़ा हुआ सोसाइटी है, उनको भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह का करम है यहाँ पे ओपन मेरिट के लोग ज़्यादा है, हमें ओपन मेरिट ही ज़्यादा रखना है। उस पर बात चल रही है और आगे भी हम बात करेंगे। नूरुल्लाह साहब ही क्यों, हम सब उमर अब्दुल्ला समेत हम पूरे लोग जो है उन नौजवानों के साथ है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो, उमर अब्दुल्ला साहब भी आए? आप नहीं देख रहे हमारे पास रियासत नहीं है, हमारे पास वो इख्तियारात नहीं है। ये सब चीज़ें रखते हुए कहीं ना कहीं कुछ सेंसिटिविटीज़ का भी ख्याल रखते हैं। नहीं तो मुझे पूरा यकीन उमर अब्दुल्ला साहब का दिल भी चाहेगा प्रोटेस्ट करो, लेकिन क्या करें, अब इस वक्त तो वो उस कुर्सी पे बैठे, वो भी बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाए हुए हैं, बल्कि हमारे साथ एग्री किया उन्होंने कि जो हमारा ओपन मेरिट है हमें इसको सेफ करना है। जो बाकी रिजर्वेशन है उनको प्रॉपरली जो रिजर्वेशन है उनके हिसाब से, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको मिलनी चाहिए।